स्टार्ट कर रहा है। The early bird catches the worm, time and tide wait for none, are the proverbs which I can use to share my stressful experience of getting up late and missing the train. Nowadays, everyone is so used to the Western culture that we are forgetting our own tradition and culture of going to bed early and waking up early morning. मैंने सर ऐसे स्टार्ट करा था इसे, मतलब ऐसे आगे लिख दूंगा वो। ठीक है, स्टार्ट तो अच्छा किया। क्योंकि सर ये सब एक बार पहले भी लिखवा चुके हैं हमसे। हाँ पता है, लेकिन मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ। अभी तो रैंडमली बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं ना, इसी के लिए मैंने दे दिया। ठीक है। ये तो मतलब मैं फिर भी वो सेंटेंसेस करा था, लाइक मुझे एक सेंटेंस में है डाउट। और सेंटेंस और प्रपोजिशंस कल फुल फ्लेजेड करेंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आज थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। कल कितने बजे लाइव कल होगा लास्ट सर? टाइम ना ग्रामर में ना मेरे को फुल मार्क्स आए थे, बस प्रपोजिशन में रह गए थे। चलो, और किसने लिखा? सर मैंने लिखा है। पढ़ो। Time and tide waits. The time and tide waits for none. I had booked a train bound to Kota a day before its departure. I had packed all my clothes in a suitcase and kept it on the sofa. Then I went to sleep as I had to wake up early as the departure time was 6 a.m. I set the alarm at 4:30 a.m., 4:45 a.m., and 5 a.m. so that I could easily wake up. I was turning side to side in my bed due to uneasiness. I wanted to achieve tranquility but was not successful in that. Thoughts kept on running in my mind about the next day, and I wasn't aware when I fell asleep. The next morning, when I woke up and looked at the clock, I was tense to see that it had already been 5:30 a.m. I dressed up fervently and went to the railway station by an auto rickshaw. While in auto, my mind was eaten up by the ugly, deplorable, and terrifying thoughts of whether I missed a train or not. Then when I reached the railway station, the sight was harrowing, distressful, and frustrating, as I had missed the train. I hustled to the nearby bus stop. While on the way, I shouted to a driver of the bus, on which it was written in an unclear and सक्षम, smudged एक manner. आई जस्ट वांट टू स्टॉप यू वंस। जो तू अभी कोशिश कर रहा है ना कि एक एक इवेंट को तीन नाम दे रहा है, हैरोइंग, डिस्ट्रेसफुल, और वो तीन देना, तीन वर्ड मत यूज कर, एक ही वर्ड यूज कर। ठीक है, अंडरस्टूड? तीन Okay, तीन sir. वर्ड यूज करेगा थोड़ा Yes, sir. ज्यादा हो जा रहा है। एक एक वर्ड यूज कर, अच्छे अच्छे एक एक वर्ड। ठीक है, हर एक इवेंट के लिए एक वर्ड। ठीक है। इट वाज Yes, हैरेसिंग sir. या इट वाज हारोइंग एक्सपीरियंस, एक वर्ड यूज कर खाली। ठीक है, चलो आए आगे। हाँ। The sight was harrowing. I hustled to the nearby bus stop, and while on the way, I shouted to a driver of a bus on which it was written in an unclear and smudged manner, to Mathura. As the next station was Mathura Junction, so I, as the next station of the train was Mathura Junction, so when I shouted, the bus came to a screeching halt, and when I approached the bus, I could smell the pungent and odorous smell of carbon monoxide emission from its exhaust. The driver was an edifying person as he understood my situation and drove fast. The train was to reach Mathura at 7:45 a.m. and I had reached Mathura by bus at 7:30 a.m. and I was able to catch the train at time and thereafter peacefully and happily reached Kota. This incident taught me to value time as it waits for no one. I learned to be disciplined towards my regular routine and I must be resilient enough to cope with any circumstances that occur as no one know what would happen the next moment. तू एक्चुअली अच्छे अच्छे वर्ड लिखने के चक्कर में थोड़ा सा प्लॉट मिस कर दिया है ना। हर एक इवेंट के लिए एक वर्ड यूज कर। ठीक है, तीन तीन चार चार वर्ड मत यूज कर, उससे बहुत ज्यादा क्या नाम है, मोनोटनी आ जाता है, वहां पे थोड़ा मजा नहीं आ रहा। और दूसरा मैं तेरे को एक तो बात और बोल रहा था, मुझे एक तो बहुत सीरियस रिजर्वेशन है कि बस ट्रेन से पहले कैसे पहुंच गई। नहीं से हो सकता है ना कि लेट हो जाती है ना बीच में। नहीं तो इसको थोड़ा एक पॉइंट लिख देगा कि जो बस का जो रूट है, इट गोज थ्रू द ट्रेन, द बस यूजेस सेवरल फ्लाईओवर्स। ठीक है, जिसके आई नो द रूट। ऐसे थोड़ा क्लियर कर देना पड़ेगा कि बस जो है, माई ओनली चांस वॉज Yes, दैट sir. आई कैन टेक अ फास्ट मूविंग बस। और बस की जगह अगर तू कुछ और भी ऐसा व्हीकल यूज कर सकता है, ठीक है,
जो कि थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि बस तो तेरे कारण वो दौड़ा के नहीं चलाएगा ना, वो तो बस अपना स्टॉप में रुकेगा, तो डजंट मेक लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। उसकी जगह ऐसा कुछ पकड़ कि Yes, sir. बाइक पकड़ लिया या कुछ पकड़ लिया, ठीक है, और वो तेरे को शॉर्टकट से लेके चला गया, तब तू पहले पहुंच सकता है, वरना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इस चीज का ध्यान Yes, रखना। sir. और कोई लिखा है ऐसे? सर सर बट मैं जो लिखता मेरा हूँ। सर टॉपिक है लिखा उसमें है। बस स्पेसिफाई कर रखा है कि हमें बस से ही जाना है। अच्छा, स्पेसिफाई किया है क्या बस से? तब यस फिर सर। ठीक है। तो खाली उसमें खाली फिर ये ऐड कर देना कि क्या नाम है, द बस का जो रूट है, ट्रेन जो है वो घूम के जाती है, ठीक है। द ट्रेन इज अ व्हाट यू से, इट्स नॉट, इट डजंट टेक द कोड लाइन, इट टेक्स द मेन लाइन, सो इट हैज सेवरल स्टॉपेजेस, व्हाइल द बस टेक्स अ क्रो फ्लाई डिस्टेंस, काइंड ऑफ अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। द बर्ड्स ऑलवेज यूज अ क्रो फ्लाई डिस्टेंस, सो जिससे के कारण वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है। Yes, तो on ठीक, my seriously, it was my fortune that the train arrived late to that station also. हाँ कुछ लॉजिक देना पड़ेगा ना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो ट्रेन है वो ऑब्वियसली बस से फास्ट चलती है, तो दैट इज अ ह्यूज लॉजिक, हम लोग का बस्टर है वो, तो अपन को कुछ लिखना पड़ेगा टीचर को समझाने के लिए, ओके। कोई और Yes, कुछ, sir. किसी ने कुछ लिखा है यहाँ पर? अभी कोई सुनाना चाहता है अपना ऐसे? सर लिखा है, बस एक मिनट, एक लाइन और रह गई। अरे इंट्रोडक्शन दे देना, जो बाद में लिखा है बाद में बताना, इंट्रोडक्शन दे। Zero. Ah, yes. It is wisely said that we should always respect time. It was Friday evening, and I was lying on my couch with excitement and joyfulness, as I was gonna travel to Mumbai on Saturday, and it will be my first experience of a train journey. I had planned everything very meticulously 2 weeks ago only, and I was organized for tomorrow. I slept a bit early so that I can wake up early and get ready. And I do not want to take any risks, so I even kept an alarm in my phone for sharp 5 o'clock, as the time for the departure from Agra was 6 o'clock. I was very thrilled and elevated for tomorrow, but I didn't knew that tomorrow it is gonna be very terrible and hectic for me, because when I woke up and saw the time, my wall clock, and when I saw the time at my wall clock, it was 5:45, and I was gazed at the clock for few minutes. As I got late and it was not the end, as I got late and it was not the end, when I looked out of my window, it was raining terribly. Terribly. I did not hasten and kept my mind busy. And then I thought that instead of wasting time by going to the railway station and waiting for another train, I thought to go to the bus stop and catch a bus for another station, where I can catch up to the train. So without frittering away any more time, I hastened towards bus stop and have catch the bus. I got a hope that I could catch my missed train, and everything was happening perfectly up to now. But then, due to heavy rain, we were stuck in the traffic, and after waiting in the traffic for about 15 minutes, the bus finally moved. The railway station was अरे only बस 2 को क्यों kilometers. जाम करा रहा है पागल, वैसे भी ट्रेन से स्लो चलता है, क्यों इसके अंदर घुसा रहा है वैसी मसाला? जाने दे बस को। Okay, sir. The railway station was only 2 kilometers away, but the stones dashed and smashed at the bus, and the bus started swinging and lost its balance. Everyone got frightened, but some people tried to control everyone and got the balance of the bus. The bus यार ये सब क्या somehow कर रहा है तू? finally. बस की जर्नी थोड़ी ना है अपनी। सर इसमें बोला है ना कि जैसे कि तुम बस से रेलवे स्टेशन कैसे गए, फिर क्या हुआ? हाँ तो तू समझ ना बात को, ट्रेन तेरी छूट गई है, अब तू बस को, उसमें बस के अंदर तू मजे ले रहा, उसमें लिखना कि बस पहुंच गया कैसे ना कैसे, तू काहे एग्जैजरेट कर रहा है, बस के अंदर फालतू लग रहा है ये। वैसे भी सबसे बड़ा डाउट तो ये आ गया, बस से हम पहुंचेंगे कैसे, ट्रेन से पहले बस से कैसे पहुंचेंगे? समझ में आ रही बात को? यस सर। अच्छा एक बार ऐसे फिर से मेरे को पढ़ने तो जरा, ऐसे में थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को। इसके अंदर क्या है, अपन को ऐसे तो 3-4 बार पढ़ लेना चाहिए जिससे अपना क्लैरिटी हो जाए। क्या ऐसे था? अगर ऐसे रीड करो तो एक बार टॉपिक रीड करो तो ऐसे का। मैं पढ़ता हूँ. You have booked a ticket on an early morning train. However, you woke up late and missed it. You then decided to run to catch a bus to the next station where you hope to catch up with the train. Narrate the entire event, how you felt, the effort you made, and how you finally caught the train. What did you learn from this stressful experience? ओके तो ठीक है, मतलब हम बस से ही गए और बस से हमने ट्रेन पकड़ ली, सही बात है। तो बस के अंदर बेसी वो मत कर, क्योंकि वो है, अपन को लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और तूने ट्रेन कैसे मिस करी, फिर तू बस में गया, ठीक है, उसके बाद बस में क्या क्या हुआ वो नहीं डिस्क्राइब करना अपन, ठीक है।
लेकिन Okay. इस बार जो तूने ऐसे लिखा मच बेटर था, पहले वाले से बहुत बेटर ऐसे था। गुड। Okay. Thank मैंने भी you. लिखा हाँ बोल, है, सुमित मेरा भी सुमित लिखा है। सुमित बोल रहा है। यस सर। चलो पढ़ो। सर एक मैंने भी लिखा है। ठीक है, सबका सुनूंगा, पढ़ो जल्दी से सुमित। So it was a beautiful lake surrounded by olive trees. With, with dry leaves, I headed towards the lake to quench my thirst. Suddenly, water splashed on my face, but not of the lake, but for my bucket thrown by my mother. As I opened my eyes, I saw the clock. Oh my God, I had missed my. क्या बात है सुमित, सपने से जाग गया, बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया भाई। नाइस। हाँ चलो गुड। हाँ फिर। I, I had missed my train by sleeping so late. My journey was very important as I had to catch my train for Mumbai for my interview. Hurriedly, I dressed up and soon rushed to the door to catch my train. But my father stopped me again. This time, he placed my mobile in my hand. I understand that I was leaving behind the most important thing, my ticket in mobile. As I am the person who believes in the power of speaking few words, I just said goodbye to my parents and left home. To reach anywhere quickly in Delhi, one has to travel by Delhi Metro. The metro does not offer pick and drop facility and hence is left at the mercy of buses, which often come late. As I was waiting, a man suggested to me to share the auto, and this comforted me like the best promising bet. Somehow I reached the metro station, but getting to the secretary check and long queue was difficult task. After all my moves, I reached the railway station when the train was moving away from me. I I could not only see a X mark on the last coach of the train fading away and mocking me. With no solution at sight, I talked to my father, who suggested me to take a taxi for the next railway station. It was a brilliant idea coming from the brilliant man who was young generation not used to catch such ideas. With his ideas, a new life in me, and I was decided to take a taxi for Faridabad. I just saw the को कर लेने जा रहे देखो so my eyes on the seat and by जो भी है देखो could easily get it. That was a rash driver. I asked him to hurry up to the next railway station. I अरे was रुक जा tense रुक जा and रुक जा, even एक सेकंड रुक जा रुक जा। टैक्सी क्या हुआ, टैक्सी वाला क्या हुआ फिर, टैक्सी का क्या हुआ? I look and I easily get it. I asked him to hurry up. I asked him to hurry up to the next railway station. टैक्सी वाले को? हम्म लेकिन उसमें तो ऐसे में लिखा कि तुझे बस पकड़नी है, बस नहीं, टैक्सी मैंने लिखा है, तो रॉन्ग हो गया पूरा ऐसे। बस नहीं कहीं लिखा मेंशन ऐसे में बस नहीं लिखा हुआ है नहीं। अर्नव? सर लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है, सर बस बस लिखा है। लिखा है। बस लिखा हुआ है बेटा। और तू मेट्रो रेलवे में क्या करने चला गया था? बन गया। तो मेट्रो मेट्रो मिस किया तूने कि तूने मैंने रेलवे, इंडियन रेलवे वाली रेलवे मिस करी? ट्रेन मिस की। तो तू मेट्रो में क्या कर रहा था? वही मेट्रो ट्रेन वही हुआ ना। अरे नहीं हुआ भाई साहब, तेरे हिसाब से तो इंडिया ट्रेन नहीं चलती। तुझे मुंबई जाना है ना? तो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, कौन से मेट्रो जाती है भाई? हाँ, दिल्ली से मुंबई कौन सी मेट्रो जाती है? तो नाम बताए? हाँ बता दे, कोई जाती है क्या दिल्ली से मुंबई मेट्रो? नहीं सर। तो फिर तूने खुद ही क्रिएट कर ली, तो एलन मस्क है? नो सर। तो क्या कर रहा है ये? उसके बाद तेरे को बोल रहा है बस पकड़ने, तू टैक्सी पकड़ रहा भाई। तो बस टैक्सी की जगह बस कर लीजिए। ठीक है, तो 20 की जगह 0 ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना? सर सही बात। अरे मेरे बच्चे, तेरा राइटिंग स्किल अच्छा है, समझा, अच्छा लिख रहा है तू, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़, समझा। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर करता है तू। तेरा लैंग्वेज का पेपर मुझे समझ में आ गया क्यों खराब होगा, क्योंकि तू क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन के अंदर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको अलग अलग लिख लीजिए और डिसाइड कीजिए आप क्या लिखेंगे उसके अंदर में, समझा। तेरा राइटिंग स्किल्स ओके अच्छे हैं तेरे पास, थोड़ा सा तू केयरलेस है, समझ में आ रही है बात को।
जो प्रेसी है ना वो भी रॉन्ग लिखेगा, समरी जो है कॉम्प्रिहेंशन का वो भी रॉन्ग लिखेगा, क्योंकि तू क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है, समझा? इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्या पूछ रहा है, और उसमें नोट डाउन कर लीजिए, उसी पॉइंट पे स्टिक कीजिए। अगर आप इधर उधर जाएंगे टीचर मार्क्स काट देगा आपका, समझ में आ रहा है? स्टार्ट तेरा अच्छा था, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, लेकिन स्टार्ट तेरा अच्छा था, एक नया आइडिया तू लेकर आया, नाइस, रिफ्रेशिंग भी था। बट अगर तू इस तरह से इतने इतने ब्लंडर मिस्टेक्स करेगा तो पूरा ऐसे खराब हो जाएगा। ओके? और जब तो ये बोल रहा है ना टैक्सी की जगह बस रख लीजिए, बस की जगह टैक्सी रख लीजिए, तो फिर वो मार्क्स रख लेगा अपने पास टीचर, फिर बोला भैया मार्क्स की जगह आप थैंक यू वेरी मच रख लीजिए, निकलिए आगे, आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट कौन सुना रहा था? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरा एक डाउट है सर, अगर हम लोग वैसे तरह से थोड़ा लिखे कि आईसीसी बोर्ड एग्जामिनर के पास उतना टाइम है कि हम लोग क्या मेट्रो में है ना ये सोचने के लिए? देखो जो एग्जामिनर है ना वो अपना जो जो क्वेश्चन है उसको साइड में मार्क करके रखता है, समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं पेपर चेक करूंगा तो मैं हर ऐसे को डिवाइड कर लूंगा कि इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, और मैं जनरली उसी पॉइंट के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो जैसे ही ये मेरे को मेट्रो लिखेगा ना मेरा दिमाग खनक जाएगा कि यार मेट्रो तो क्वेश्चन में ही नहीं था। फिर ये टैक्सी लिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि टैक्सी तो क्वेश्चन में नहीं था। मैं इसका पूरा ऐसे पढ़ूंगा ही नहीं, मैं जस्ट पढ़ूंगा और काट दूंगा मार्क्स। हमारी बात को तुमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर एग्जामिनर का इतना टाइम होगा, तो तुम खुद सोचो अगर तुम एग्जामिनर होते तो क्या करते? अगर यही ऐसे तुमको एग्जामिन करने दिया जाता, और जैसे अभी क्लास में सपोज कर लो कितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, कम से कम 25 बच्चे हैं क्लास में, क्या तुम सबके ऐसे पढ़ पाओगे? सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो तुम क्या करोगे? तुम एक जिस्ट ले लोगे, उसी के ऊपर में काम करोगे, है ना? तो अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट कोई लिखेगा तो मैं उसका मार्क्स काट दूंगा। समझ में आ रही बात को? हाँ सर, और सर ये और एक डाउट है सर, मेरा ना हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, तो सर क्या वो हैंडराइटिंग क्या अगर मतलब चाहे तो वो क्या मेरे ऐसे इग्नोर कर सकते हैं? देखो हैंडराइटिंग लेजिबल होना चाहिए, ठीक है? खराब भी होता है तो लेजिबल एक अलग चीज होती है, ठीक है? तो अगर जिसकी हैंडराइटिंग खराब है उसको काटाकुटी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है? कहीं पर भी ये सब स्क्रैच रब ये सब नहीं करना चाहिए अपनी राइटिंग में। पेपर को क्लियर रखना चाहिए, जितना ज्यादा क्लियर को। ब्लैक पेन से कभी नहीं लिखना चाहिए, ब्लू पेन से लिखो, ठीक है? जिससे हैंडराइटिंग और गंदा नहीं दिखे तुम्हारा, ठीक है? ट्राई टू लीव स्पेसेस। अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी पुअर है तो हैंडराइटिंग के हर लेटर के बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जिससे थोड़ी क्लैरिटी दिखे। तो यू हैव टू वर्क आउट वेज। और ये बात तो 100% ही बात है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपके मार्क्स खराब आएंगे। आई कैन टेल यू एन एग्जाम्पल। मेरा एक तो फ्रेंड था, क्लास 12 की बात बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है? तो क्लास 12 में उसकी हिंदी बहुत खराब थी, ठीक है? ही गॉट वेरी वेरी, ही वाज वेरी बैड इन हिंदी। और हमारे हिंदी टीचर का वो फेवरेट टारगेट भी था। तो कभी भी वो कुछ लिखता था, मैंने हमारा हिंदी टीचर 15 मिनट उसकी बेइज्जती करेगा ही करेगा, नहीं समझा आपको? कुछ ऐसा ही था। तो उसकी 15 मिनट बेइज्जती वो करता ही था हमेशा ही। तो कुछ कभी भी कुछ होगा तो उसकी बेइज्जती करनी है उसको, ठीक है? लेकिन बाय डिफॉल्ट उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी, ठीक है? मैंने वो बहुत ही सुंदर लिखता था। उसकी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हिंदी थोड़ा सा वीक था, लेकिन हिंदी की हैंडराइटिंग इतनी सुंदर थी, मोती जैसी हैंडराइटिंग थी। यू वोंट बिलीव, हम लोग के स्कूल में जो हिंदी में हाईएस्ट लाया ना वो वही लड़का लेकर आया, उसी का हाईएस्ट आया हिंदी में क्लास 12 के एग्जाम में, आई रिमेम्बर। और वो जाके हमारे हिंदी टीचर के सामने खूब डांस किया कि सर देखिए आप तो मेरे को इतना वो बोल रहे थे, और देखिए तो हिंदी टीचर को यकीन ही नहीं हुआ कि इसका इतना मार्क्स आएगा। तो वन ऑफ द रीजन उसका हिंदी का मार्क्स आने का था सुंदर हैंडराइटिंग, अंडरस्टूड? तो आपकी सर हैंडराइटिंग तो अच्छा टिप दे दिया। नहीं, हैंडराइटिंग मैटर करता है भाई। तुम खुद सोचो ना, 50 बच्चे का ऐसे देखते देखते टीचर की आंखें पूरी एकदम पागल हो जाती होंगी, है ना? फिर वो सर देखता मेरा है एक क्वेश्चन था। एक सेकेंड, फिर वो देखता है कि किसी की सुंदर हैंड राइटिंग है तो फर्क पड़ता है उससे। सुंदर हैंड राइटिंग और सर तो सुंदर, ज्यादा नीटली लिखने में टाइम भी तो बहुत जाएगा ना सर, लेकिन तो ये तो हैबिट होती है बेटा, एक दिन में थोड़ी ना बनती है। ये तो सब किसी की हैबिट ही होती है अच्छी लिखने की। वो एग्जाम से पहले किसी की हैंड राइटिंग नहीं सुधर सकती। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अर्नव साहू, हु वाज आस्किंग मी, अर्नव वाज आस्किंग। जिसको क्वेश्चन यस सर। पूछ रहा है प्लीज रेज योर हैंड, तो मैं देख पाऊंगा और मैं आप लोग को थोड़ा बात कर सकूंगा आपसे। जिसको भी क्वेश्चन पूछा रेज योर हैंड। यस सर अर्नव। मेरा क्वेश्चन था कि सर जैसे अगर ऐसे में मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा और मैं जब रीचेक कर रहा हूँ उसे, तो मुझे अगर कुछ मिस्टेक्स मिल रहा है तो मैं उस मिस्टेक्स को सर क्रॉस करूँ कि नहीं करूँ, कि एग्जामिनर को लगता देखो है कि फिर। अगर क्रॉस करना है तो बहुत हल्का सा पेंसिल से, ठीक है? पेंसिल लेके रखो, पेंसिल से काट दो हल्का सा एक लाइन, ओके? दैट विल नॉट लुक डर्टी, ओके? डोंट मेक योर पेपर डर्टी, दैट इज द पॉइंट, ओके? यस सर। ओके अक्षत। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर
हम लोग लेटर राइटिंग अगर अच्छी कर देते हैं, अगर ऐसे उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं, तो क्या लेटर में भी मार्क्स बहुत कम ही मिलेंगे? देखो टीचर्स जो होते हैं ना, देखो मार्क्स कम क्यों मिलते हैं आपको ये सोचो। मार्क्स कम इसके लिए मिलते हैं क्योंकि आपकी राइटिंग स्टाइल थोड़ी वीक होती है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपकी कॉम्पोजिशन की राइटिंग स्टाइल वीक है तो ऑब्वियसली लेटर का भी राइटिंग स्टाइल वीक ही होगा, ठीक है। देयर इज समथिंग इन द वे यू राइट, अंडरस्टूड, योर ग्रामेटिकल जो चीजें है, देयर इज समथिंग, देयर इज अ स्किल ऑफ राइटिंग, अंडरस्टूड। तो तुम्हारी अगर राइटिंग अच्छी है तो ऐसे में भी अच्छी होगी, लेटर में भी अच्छी होगी। एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन राइटिंग तो वो हर चीज में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात को। सो ऐसा नहीं होगा कि कॉम्पोजिशन अच्छा हुआ तो, इसी के लिए बचने के लिए तुमको फॉर्मल लेटर लिखना चाहिए, इनफॉर्मल लेटर मत लिखना, ओके। चलो नेक्स्ट आई विल टेक चिराग, तेरे से नहीं पूछूंगा, रोहन वर्मा, यस। सर ऐसा होता है कि लेटर में अगर मतलब जैसे कंपोजिशन में कम आ रहे तो लेटर में भी कम मिलते हैं नंबर। क्या बोला, फिर से बोला, आई डिडंट गेट इट, क्या बोला रोहन? अगर कंपोजिशन में नंबर कम मिलता है तो लेटर में भी थोड़े कम हो जाते हैं। देखो कॉम्पोजिशन का कहानी ऐसा है ना कि कॉम्पोजिशन हो सकता है तुमने अच्छा लिखा पर तुम्हारा कॉम्पोजिशन आउट ऑफ ट्रैक चला गया, ठीक है। माने इफ यू आर अ गुड राइटर तुम अच्छा लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी अपन क्वेश्चन को रॉन्ग इंटरप्रेट कर लेते हैं या क्वेश्चन हम लोग ढंग से नहीं पढ़ते, तो देयर कैन बी लाइक, अगर उसके कारण मार्क्स कम आया है तो लेटर से फर्क नहीं पड़ता, लेटर तुमने परफेक्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा लिखने का स्टाइल ही गलत है तो फिर गलती है, फिर क्या कर सकते हो उसके अंदर, ओके। यस नेक्स्ट, क्या नाम है, अक्षत श्रीवास्तव, आई हैव टेकन योर क्वेश्चन ना अक्षत? यस। जिसका हो गया क्वेश्चन वो प्लीज अपना हैंड डाउन कर ले। हाँ केशव अग्रवाल, केशव, उज्जवल। सर मेरे को ये पूछना था सर, जैसे हम ऐसे में ये ऐसे सर, जैसे हम वर्ड्स यूज करेंगे जो आपने दिए सर, और अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, या फिर हमारे में सर हमने कोड डाला है, सर कोड तो दिख जाएगा जैसे हम एग्जामिनर जैसे चेक कर रहा हो, पर सर हम जैसे मान लो सर थोड़े थोड़े वर्ड्स यूज करेंगे, तो सर ऐसे में वो दिखेंगे कैसे? सर मतलब कि हमने यूज किए वर्ड्स, वो पूरा एग्जामिनर बाय लाइन तो रीड करेगा नहीं? क्यों नहीं करेगा, जस्ट ऐसे देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम फर्स्ट पैरा के अंदर में लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करते हो, ठीक है। जैसे द पैल्पिटेशन ऑफ माई हार्ट, ठीक है, माई हार्ट बिगेन टू पैल्पिटेट फास्ट, ओके, ठीक है, या ईगरली। अगर हम लोग इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं तो एक अट्रैक्शन होता है। देखो राइटिंग क्या बोलते हैं, सुंदर राइटिंग जो होती है उसका एक स्किल होता है। अभी जैसे सक्षम का हमने एग्जांपल लिया, सक्षम ने बहुत सारे वर्ड्स घुसाने की कोशिश की, कुछ ज्यादा ही घुसाने की कोशिश की, तो जो प्लॉट है वो मिस हो गया, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि 350 वर्ड्स में अगर आपके पास 10 अच्छे वर्ड्स है ना तो आपका लेटर स्टैंड आउट हो जाएगा, समझ में आ रही सक्षम? 350 वर्ड्स में हम लोग को 50 अच्छे वर्ड्स नहीं घुसाने, हम लोग का जो सोल ऑफ द ऐसे है ना वो उसके संग अपन को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमको बीच बीच में अच्छे अच्छे वर्ड डालने जिससे हमारा वो एक्सप्लेनेशन बेटर हो, ठीक है। जैसे मैं तुम लोग को एक हमेशा जब भी एग्जांपल देता हूं, मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूं कि हम लोग हर सेंटेंस में बैड यूज करते हैं। तुम लोग को मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया होगा, बैड हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज अ बैड बॉय, है ना, लेकिन अगर मैं उसकी जगह बोलूंगा ही इज अ इविल बॉय, है ना, तो वो वर्ड अलग ही सेंटेंस हो जाता है। इविल का मतलब वो रियली बदमाश होगा, है ना। अगर कोई लड़का देखने में सुंदर नहीं है तो हम लोग बोल देते हैं ही इज अ बैड बॉय, लेकिन अगर उसके लिए मैं बोलूं ही इज अ अगली बॉय तो फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर बोलूंगा द लिविंग कंडीशन इज बैड या उसकी जगह बोलूंगा द लिविंग कंडीशन इज डिलापिटेड तो फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा द फूड स्मेल्स बैड, बैड की जगह लिखूंगा द फूड स्मेल्स फाउल तो फर्क पड़ता है, अंडरस्टूड। तो इंग्लिश के ये कब आपको कौन सी राइट वर्ड राइट वोकैबुलरी यूज करनी है इसका एक तो ये प्रैक्टिस करते करते आता है, ठीक है। सक्षम मैं तुमको फिर से एक बार फिर से तुमको बोलना चाह रहा हूँ कि डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द सोल ऑफ द एसे, ठीक है। जो अपन वर्ड्स यूज करेंगे अपन को 10 ही वर्ड यूज करने और बहुत सोच समझ के करेंगे। वर्ड के लिए अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे में अपन वर्ड लिखेंगे, ओके। यस सर। चलो शिवांशु, सर एक चीज सर एक चीज और पूछनी थी। पूछनी थी। एक सेकंड, हाँ उज्जवल बोलो। सर मुझे यह पूछना था, जैसे एक कंफ्यूजन थी सर, जैसे मैं एस से बाद में लिखूंगा तो सर जो वैसे तो सब पेपर में सबसे पहली जो चीज आती है वो ऐसे आएगी, तो सर हम ऐसे डायरेक्टली लिख दें कि सर क्वेश्चन 1 कंपोजिशन एट द लास्ट, सर ऐसे लिख सकते हैं? नहीं तुम टीचर लोग सीरियल नंबर देखते हैं, तो तुम अगर सपोज करो ग्रामर से स्टार्ट करो अपना क्वेश्चन नंबर टिक से लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर सपोज करो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो,
उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या नाम है 4, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 1। तो जो तुम नंबरिंग करोगे क्वेश्चन की वो अच्छे से करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट किसका ले रहे थे? शिवांशु। यस सर सर पहले लैंग्वेज सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे या राइटिंग सेक्शन? देखो मैं तो हमेशा पहले एडवाइस करता हूँ ग्रामर पहले करना चाहिए। सबसे पहले ग्रामर कर लो, उसके बाद नोटिस और ईमेल कर लो, ठीक है। उसके बाद लेटर कर लो, ठीक है। और फिर कॉम्प्रिहेंशन करो, फिर कॉम्पोजिशन करो। तो कॉम्पोजिशन में आप, और हमेशा याद रखना जो आपको 15 मिनट मिलेगा स्टार्टिंग का रीडिंग टाइम, उसमें अपना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेना अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन। आप फर्स्ट 15 मिनट्स में इतना ऐसे कौन सा ऐसे आए सब ध्यान मत देना, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन रीड करना, ठीक है। ओके चलो। सर तो अगर पहले ग्रामर सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर पे बैड इम्प्रेशन नहीं ना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई इंप्रेशन बैड नहीं पड़ता। आंसर अटेम्प्ट करना है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। खाली क्वेश्चन नंबर राइट लिखना आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके सर एक डाउट है पूछ सकता हूँ? अबे तेरे को कितने डाउट है बे? आदमी है कि क्या है तू? हक सर एक जल्दी बोल। सर ना, जैसे पूरा कॉम्पोजिशन चेक और वर्ड्स काउंट करने में लिखने में कितना टाइम स्पेंड करना है? क्या बोला? पूरा कॉम्पोजिशन मतलब लिखने में और उसको चेक करने में एक बार, और वर्ड्स काउंट करने में टोटल कितना टाइम स्पेंड करना है? वर्ड्स काउंट करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोग को बहुत अच्छा आइडिया दिया था, मेरी बात तुम लोग सुनते नहीं, तुम लोग गधे हो। हाँ 7 वर्ड्स, हाँ 7 तो वर्ड्स मैं हैं, तेरे को ये 7 बात वर्ड्स एक बताई तो मिनट फिर में। दोबारा क्यों पूछ रहा है मेरे से? नहीं तो अच्छा टोटल टाइम मतलब कितना? टाइम तो तुम्हारे ऊपर कितना डिपेंड करता है वो करता है। अगर तुम समझ करो स्टार्टिंग में कॉम्पोजिशन लिखोगे, देखो होता क्या है, कभी कभी हम लोग जब स्टार्टिंग में लिखने बैठते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमको कितना बड़ा लिखना है। तो तुम लोग का तो 2 आवर्स का पेपर होता है ना, तो तुम लोग हाँ लिखते सर। लिखते 30-40 मिनट्स अगर तुम कॉम्पोजिशन में लगा दोगे, और बाई चांस तुमको कोई पॉइंट खराब हो जाएगा, तुम फिर काट के दूसरा पॉइंट लिखोगे, 30-40 मिनट्स अगर वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। फिर तुमको लगेगा मेरा कितना पेपर बाकी है, मेरा अभी 60 मार्क्स का पेपर बाकी है ना, माने 40 मिनट चला गया, 60 मार्क्स का पेपर बाकी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ गो अदर वे राउंड। अदर वे राउंड होगा तो क्या होगा, देखो ग्रामर तुम कितना भी करोगे, तुमको ग्रामर मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट में तुम्हारा ग्रामर ओवर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 20 मार्क्स का पेपर खत्म हो गया 10 मिनट के अंदर। फिर तुम नोटिस ईमेल लिखोगे, कितना टाइम लगेगा? नोटिस ईमेल में चलो 20 मिनट्स मान के चले जाते हैं, ठीक है। तो 20-30 मिनट्स में 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया। फिर लेटर लिखना है, लेटर में फिर एक तो 20 मार्क्स का अपन लेटर में करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? वो लेटर भी चला गया 20 मार्क्स 20 मिनट्स में, ठीक है। तो तुम्हारा 60% पेपर कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे पास बचा कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का भी जो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है उसमें बेसी टाइम लगेगा नहीं, प्रेसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मान लो 20 से 25 मिनट्स तुम्हारा प्रेसी वैसे लिख के कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे पास वो 30 मिनट है कि 40 मिनट है कि 35 मिनट्स है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना बचा, माने कितना तुम्हारा तुमने टाइम बचा लिया। तो 30-35-40 मिनट्स है तो तुम आराम से कॉम्पोजिशन लिख सकते हो। अगर 20 मिनट्स है तो थोड़ा फास्ट लिख सकते हो। तो कॉम्पोजिशन के ऊपर में तुम बाद में थोड़ा सा खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन, उसको हम बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं। तो दैट तो यू कैन प्लान इट, ठीक है। लेकिन अगर तुम उल्टा चलोगे, तुम अगर पहले कॉम्पोजिशन में 40 मिनट्स ले लोगे, ठीक है, जल्दी नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारा फिर सारा प्लानिंग हे वायर हो जाएगा, थोड़ा सा पैनिक स्ट्राइक हो जाएगा तुमको, और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ गया? यस सर। सर आपने जो बोला वैसे मैंने कभी नहीं किया, मतलब आज क्लास 9 से लेकर प्री बोर्ड तक नहीं किया, तो अभी क्या बोर्ड में आके हम लोग नहीं ऐसा नहीं, कर सकते हैं? जो आप लोग पुराना, ये मैं उसके लिए, जो तुम लोग का पुराना रूटीन है उसको ही फॉलो करो, ठीक है। बासु डोंट चेंज फॉर मी, अंडरस्टूड, ठीक है। अगर तुम्हारी स्कूल की टीचर की भी बात सुनो, अगर स्कूल का टीचर बोलता है कि नहीं पहले कॉम्पोजिशन करो, तो अपना देखो, हर स्कूल अगर उसी ट्रेंड में जाएगा, तुम डिफरेंट करोगे तो मुश्किल होगा। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, जनरल एडवाइस है मेरा। जो फर्स्ट टाइम करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। बट लेकिन जैसे कोई आदमी शुरू से कॉम्पोजिशन लेकर, जो तुम्हारा प्रैक्टिस है उसको चेंज मत करो, ओके। और सर क्या नोटिस और ईमेल के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा? हाँ, नोटिस और ईमेल, नोटिस के लिए तो बॉक्स बनाना ही पड़ता है, ईमेल के लिए भी बॉक्स बनाना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट किसका ले रहे हैं? ये आयाम गुप्ता। यस आयाम। सर सर जैसे मैंने जो पेपर प्लान करा है टाइमिंग के हिसाब से, तो मेरे पास 10 मिनट रीडिंग टाइम बच रहा है, तो क्या ये इनफ है? और अगर हाँ, तो इस रीडिंग टाइम में पहले क्या करना है, मतलब बाद में क्या करना होगा? 10 मिनट रीडिंग टाइम कैसे बच रहा है तुम्हारे? 10 मिनट ये मतलब चेकिंग टाइम, मतलब चेकिंग टाइम मतलब मैं नहीं समझा, रिवीजन का? मतलब एक, हाँ रिवीजन का। हाँ, वो तुम्हारे पास बच जाएगा तो तुम्हारे हिसाब से? ये हाँ बच जाएगा।
हाँ तो फिर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? तो मतलब इतना समय बहुत है, और अगर हाँ तो मतलब क्या चेक पहले करना है और क्या बाद में करना है? क्या चेक करोगे? 10 मिनट का टाइम मिलेगा, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें ग्रामर एक बार चेक कर लेना और क्या, और देख लेना कोई तुमको ऐसा डाउट हो रहा हो, अगर कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग तुमको लग रहा है एप्ट नहीं है तो वो चेक कर लेना, और क्या चेक करोगे? ओके सर। लेकिन बड़ा सर मैंने बड़ा कैलकुलेटिव मेरे को लग रहा, 10 मिनट बच जाएगा। आई रियली वंडर। ये अच्छा, सब हाँ प्लान सर। प्लान तो ठीक है तो पर ये पूछना सर, बोलो बोलो। से पूछना सर, ऐसा कोई पेन से प्रॉब्लम तो नहीं सर, जैसे जेल और बॉल दोनों से ही लिख सकते हैं ना? क्या एक बार फिर से चेक कर लो यार, मैं ये सब चीज में हमेशा कंफ्यूजन रहता है यार। तुम लोग का वो टीचर लोग ने क्या बोला? सर टीचर ने तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ बोला नहीं है, नहीं, किसी से भी तुम्हारे कर सकते। आईसीएससी मेरे का जो टीचर ने रूल्स एंड बॉल पेन का रेगुलेशन होता है ना, बोला। उसमें लिखा रहता है। अर्नव से पूछो। अर्नव, यस सर। नहीं तुम अर्नव साहू नहीं, अर्नव अग्रवाल। मेरा अर्नव कहाँ गया? मेरा अर्नव भाग गया क्या? मेरा अर्नव, अर्नव। सर सब तो आपका ही अर्नव है, आप अर्नव साहू को अपना नहीं बोल रहे हैं। हाँ तुम भी मेरा ही है, सही बात है। एक बार तुम लोग का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें क्लियरली लिखा रहता है, आई थिंक जेल पेन इज नॉट अलाउड, आई गेस, पता नहीं, देख लेना सब एक बॉल पेन, ये सर ब्लैक सिर्फ कलर, बॉल ही यूज करते ब्लैक हैं। बॉल पेन। बार। हाँ, क्रिकेट। ब्लैक है कि ब्लैक एंड ब्लू है? सर फाउंटेन पेन भी अलाउ है सर, फाउंटेन पेन। हाँ सब पासू बता। ब्लैक ब्लू पेन मतलब लिखा है रूल्स में। हाँ ब्लैक और ब्लू, और मेरे ख्याल से जेल पेन इज नॉट अलाउड, आई गेस ना। इज इट ये सर अलाउड उसमें वासु? इंक फैल जाती तो वो इंक अलाउड नहीं। वासु, सर अलाउड अलाउड सर, अलाउड है सर। अलाउड सर है? बोर्ड का उसमें लिखा है। हाँ सर, बोर्ड बोर्ड ने जो इस यस बार वो सर। टाइम टेबल का पीडीएफ निकाला है, उसमें ही लिखा है सर। हाँ तो वही सर कंफर्म हमें कर रहा टीचर हूँ। ने भी जेल ही बोला है, हमें अच्छा, टीचर्स ने जेल बोला है यूज हाँ करने तो को। वही कंफर्म करो, अगर बोला है तो तुम लोग को बताया होगा टीचर ने, ठीक है तो फिर अलाउड है तो ठीक है, चेक कर लो। सर वो वाला पीडीएफ में पॉइंट नंबर 7 में लिखा है, ऑल एंट्रीज ऑन द आंसर बुकलेट आर टू बी मेड विथ ब्लैक ब्लू पॉइंट पेन स्लैश फाउंटेन पेन। नो जेल पेन का वो नहीं किया है। हाँ तो यहाँ पे तो लिखा होता, लिखा नहीं है जेल पेन, फिर तुम कहाँ बोल रहे हो जेल पेन अलाउड है? नहीं बोल, मैं बोल फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन। तो जेल पेन इज नॉट अलाउड? नो सर। अभी बोल रहा था यस हमें सर। तो जेल पेन ही बोला है, हमें तो जेल पेन बोला है सर, सारे टीचर्स ने। पक्का? इसमें थोड़ा सा डाउट यस रहता सर, है लेकिन। 100%। सर पर यहाँ पे तो लिखा है सर, बोर्ड का एकदम वहाँ पे, ऑल एंट्रीज ऑन द आंसर बुकलेट आर टू बी मेड विथ ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन स्लैश फाउंटेन पेन। यस, इसी तो मैं बोल रहा हूँ, वहीं तो कंफ्यूजन है। शौर्य एक बार फिर से अपनी मैम से पूछ लेना भाई, रिकन्फर्म कर लेना, स्कूल का टीचर इसमें हमेशा टेंशन ओके रहता सर, है। ओके। हाँ रिकन्फर्म कर लेना। ओके सर, ओके। एज फार एज आई नो, ओके मुझे ओके ऐसा पता है कि जेल पेन इज नॉट अलाउड, लेकिन फिर से एक बार चेक कर ले, रीचेक कर लेना भाई, ठीक है? मेक इट बने, ऐसे गलती नहीं होना चाहिए सब चीज ओके की, सर, ओके सर। ठीक है? सर हाँ कौन बोला? उत्कर्ष? सर अक्षत अक्षत अच्छा अक्षत अक्षत बोलो। हाँ सर वो प्रीपोजिशन सर बहुत गलत हो रहे हैं सर, उसके लिए कुछ बताइए। देखो, तो प्रपोजिशन, बाकी सब सही कर ले रहे हैं। प्रपोजिशन अगर गलत हो रहे हैं तो प्रपोजिशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है? उसको इमेजिन करो प्रपोजिशन को। आप लोग जब प्रपोजिशन इमेजिन करते, आप लोग ठीक से उसको सोचते नहीं हो प्रपोजिशन को, ठीक है? तो ट्राई एंड इमेजिन कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग, ठीक है, डैश द रिवर बेड, है ना? तो वो बहुत जन लिखते हैं बिसाइड द रिवर बेड, ठीक है, बाय द रिवर बेड, ये सब बहुत जन लिखते हैं। आप याद रखो, आप वॉक कर रहे हो, आप उसकी बगल में खड़े नहीं हो, तो आप वॉक करोगे तो वो अलोंग द रिवर बेड होगा, ठीक है? इट कैन नॉट बी बिसाइड या बाय द रिवर बैक, नहीं हो सकता वो चीज। अंडरस्टूड? तो यू हैव टू इमेजिन, थोड़ा सा ओके इमेजिनेशन यूज करना भी बहुत जरूरी है व्हेन यू आर डूइंग प्रपोजिशंस। आप सोचोगे कि आप लोग ना प्रपोजिशन को एकदम खेलते हो रैंडमली, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट इन्वॉल्व, अंडरस्टूड? जब हम बोलते हैं आई वेंट अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, तो अक्रॉस द बॉर्डर का मतलब क्या होता है? इस पार से मैं उस पार जा रहा हूँ ना, ओके? तो आपको सोचना पड़ेगा आप किधर जा रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज आपको इमेजिन भी करनी पड़ेगी। वैन बोलता ना आई वॉज गोइंग थ्रू द टनल, ठीक है, तो बहुत जन बोलता है इन द टनल, ठीक है, बाय द टनल, फ्रॉम द टनल, ये सब नहीं होगा। आप उस टनल से घुस के निकल रहे हो तो थ्रू द टनल होगा, अंडरस्टूड? सो आप जब प्रपोजिशन सॉल्व करो, अभी भी टाइम है, कल से तुम एक काम करो, जितना 10 ईयर का पेपर है उसके 10 साल के प्रपोजिशन को सॉल्व करो, लेकिन प्रपोजिशन में गैस वर्क मत करो, ठीक है? इट इज नॉट अ गेम।
देयर इज सम साइंस इन्वॉल्व, अंडरस्टूड? उस साइंस को समझने की कोशिश करो, ठीक है? ग्रामर जो होता है वो रूल फॉलो करता है, उस रूल को समझो और आप क्वेश्चन को समझो। एक बार आप क्वेश्चन को समझ लोगे तो क्या नाम है, वो ठीक होने लगेगा। यस उत्कर्ष, टेल मी। ओके हाँ सर मैं बोल रहा था कि सर जो आपने एस्से दिया था सर, इसमें कोटेशन में लिख सकता हूँ कि सर अर्ली बर्ड कैचेस ऑफ द वॉर्म, तो सर इसको पहले पैराग्राफ में लिखूं ना, तो सर उसमें स्टेटमेंट क्या डालूं इस कोटेशन को लिखते समय? पहले पैराग्राफ में लिख सकता है। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? तो सर फिर इसमें स्टेटमेंट क्या डालूं इस कोटेशन के साथ? स्टेटमेंट मतलब? सर जैसे कि कोटेशन से पहले कोई स्टेटमेंट डालूंगा ना, दैट आई वुड रिलेट माय एक्सपीरियंस करके, तो कोई स्टेटमेंट डालूं कि नहीं डालूं? नहीं, कोटेशन से स्टार्ट कर, फिर आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर। ओके सर। यस, नेक्स्ट हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? फिर उत्कर्ष सिंह। अरे नहीं सर, लोअर कर रहा था। अच्छा, शिवांशु। सिद्रा खान, यस आस्क क्वेश्चन फटाफट। यस सिद्रा। हाँ सर, ऐसे से पहले प्लानिंग भी लिख सकते हैं क्या? ऐसे से पहले प्लानिंग मतलब नहीं समझा मैं। मतलब ऐसे स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट में, मतलब ऐसे में क्या लिखना है उसका प्लानिंग लिख सकते हैं? उसका प्लानिंग ऐसे में लिख सकते हैं, साइड में लिख लो ना, रफ पेज में लिख लो। ऐसे में नहीं लिख सकते बेटा, ऐसे में नहीं लिखेंगे प्लानिंग। अगर आपको लेकिन सर हम लोग के स्कूल में हमेशा लिखाया जाता है, मतलब ऐसे से पहले कुछ पॉइंट्स प्लानिंग का, उसके बाद उसको स्ट्राइक ऑफ करके आगे बिगिन करना। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, क्या बोलना चाह रही है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्या, कैसे? एक सेकंड सर, आपको मैं दिखाती हूँ। दिखा। लेकिन जब तक मैं तुमको स्क्रीन शेयर करने नहीं बोलूंगा तो कैसे होगा? चलो मैंने दे दिया तुमको परमिशन, जल्दी करो, टाइम नहीं है, 1 मिनट इज लेफ्ट। शौर्य, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या? सर एस से एंड करना नहीं आता मेरे को, एस से एंड कैसे करे जी अच्छा लगे इधर को? सर ऐसे। अच्छा, तुम बोल रहा है कि ऊपर, तुम ऊपर ऐसे सारी पॉइंट्स लिख लोगी फिर उसको एक्सप्लेन करोगी नीचे। तो इसको ऊपर मत लिखना, अगर तुमको करना भी है तो पीछे, तो एक तो साइड में लिख दो, रफ पेज करके उसमें लिख ऐसे। लेकिन कोई करता नहीं है ये, आई डोंट नो व्हाई योर टीचर इज सेइंग दैट, ऐसा कोई नहीं करता। तुम अपना कोई साइड में कोई पेपर में अपना तुम पर्सनली तुम कर सकती हो, पर पेपर के ऊपर रखने का जरूरत नहीं है सर। तो रफ पेज में लिख सकते हैं। हाँ, रफ पेज अपने अपने हेल्प के लिए कर सकते हो, ऐसे ऊपर आपको नहीं लिखना है ऐसे कुछ। ओके ठीक है सर। हार्डली वाला सेंटेंस को कैसे करना है ट्रांसफॉर्मेशन? हार्डली वाला तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने प्रेपोजिशन के ट्रांसफॉर्मेशन की तो क्लास करी थी लाइव में। मेरा लाइव वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में, उसमें जाके देखो, उसमें मैंने बताया कैसे करना है। अभी तो टाइम है नहीं, कल हम लोग फिर से आएंगे, प्रेपोजिशन करेंगे, ठीक है? सर कल कितने बजे? सर कल कितने बजे? कितना बजे आई कांट टेल यू, क्योंकि अभी बहुत प्रेशर है, कब टाइम मिलता है नहीं टाइम मिलता पता तो नहीं। कम्युनिटी में पहले से बोल के रखिएगा थोड़ा, मतलब। हाँ दैट, आज जैसे मेरे को सीबीएसई के लिए लाइव जाना था पर मैं जा नहीं पाया सर। एक टॉपिक पे मैंने भी ऐसे लिखा है, आयाम गुप्ता, ठीक है? कल देखेंगे आयाम। उत्कर्ष जल्दी से क्वेश्चन पूछो जिसको पूछना है, 1 मिनट बाकी है, दिस मीटिंग विल गेट ओवर। हाँ सर, पूछ रहा था कि सर नो सूनर में डस कब लगता है? जब कोई इवेंट एवरी डे हैपनिंग होता है, ठीक है? नॉट वंस इन अ वाइल बट एवरी